So students, we are covering a very important chapter from arithmetic maths, and the name of topic is time, speed and distance. Time, speed and distance. From this chapter, from this chapter, we have covered the multiple topics. First, we have seen basic conceptual problems. First, we have seen basic conceptual problems. Then we have seen the concept of average speed in detail. Then we have seen the concept of average speed in detail, and I have explained to calculate average speed with 2-3 methods. Third, the concept of we have seen the concept of relative speed. Then we have seen the concept of boat and stream. Boat and stream, we have solved the problems of boat and stream in very detailed manner, and approximately 11-12 problems we have solved from the topic boat and stream. Then we have seen the concept of thief and policeman, the concept of thief and policeman. After that we have solved some questions, not more but 2-3 questions we have solved from the topic train. If time will allow us for today, we will see some good quality questions from the topic train. If time will not allow us for today, then we have seen tomorrow the questions related to the train. And last topic has been left from this chapter, and the last topic is questions related to the race. Questions related to the race. In race, he will ask questions. Some questions he will ask related to the linear race, and some questions he might be asked from circular race. Some question he might be asked from circular race. Once you will be thorough with the concept of race, you can simply solve the questions based upon the linear as well as circular race. So our today's discussion will be on the topic race. So today I am going to start, or I am going to explain the concept of the problems related to the race. Concept of the problem related to the race. Before solving questions, we have to understand few terms. From the topic race. So first term we have to understand. First term is dead heat. Or somewhere it can be written as dead race. What it mean? Listen to me very carefully. What it mean?
What it mean? It means that when a race is finished, when a race is finished by the two competitors, by the two or more competitors, more competitors exactly exactly at the same time. When the race between two or more competitors, when a race finished by the two or more competitors exactly at the same time, exactly at the same time, or we can say that when the result when the result is same between the competitors, or we can say that when the results is same between the competitors. ठीक है बेटा. Dead heat or dead race means suppose a race is happening between two or more competitors. If all the competitors are traveling the same distance in a given time, or we can say that they are ending with the same results, then we can say that this is a dead race or dead heat. Are you clear with this term? Are you clear with this term? Say yes or no. Okay. Yes, sir. Are you clear with this term? Okay. Next term is next term is next term is beat distance. Next term is beat distance. Next term is beat distance. Take it. Distance. What it mean? It means that when when a person when a person beats another person, when a person beats another person by a by a certain certain distance, by a certain distance, so that particular distance is known as beat distance. That particular distance is known as beat distance. When a person beats another person by a certain distance, by a certain distance in a given race, in a given race, means a race is happening between two candidates. When a person beats another person by a certain distance, so that particular distance is known as beat distance. What it mean? Listen to me carefully. What it mean? Listen to me carefully. Suppose a race is happening between two persons. A race is happening between two persons, A and B. This is my start point, and this is my finished this is my finished or destination point, or destination point. Okay, this is my destination point. Suppose a race of distance D is happening between two candidates.
between two candidates A and B. Okay, suppose this race is happening for this race is happening for 5 minutes. Means both the participants can finish the race in 5 minutes. Say, suppose A has covered the total distance D. Suppose A has covered the total distance D, the total distance D. Suppose A has covered the total distance D and the distance covered and the distance covered by B is this only. In 5 minutes, in 5 minutes, person A has covered the total distance, but the distance covered by B is this only, or I can say that person B left, person B left by X meter behind the destination or finished point. Suppose person A left behind the small x distance from the finishing point. So I can say that this x is nothing but this x is my beat distance. This x is my beat distance. Means in the given time A covered the total race, but B did not cover the total distance. B left X meter behind the destination point. So I can say that A won the race by a small x meter, or we can say that B lose the race by a small x meter distance, and this particular distance is known as beat distance. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Say yes or no. Okay. Now, one more term, beta, and that term is that term is beat time. Initially, what we have seen, person is beat, a person beat another person by certain distance. Now, if a person, sorry, in a given race, in a given race, in a given race, if a person, if a person defeats, if a person defeats another person, if a person defeats another person by certain time, by certain time, so that particular time is known as my beat time. That particular time is known as my beat time. My beat time. Now listen to me what it mean. Suppose beta एक रेस हो रही है. Suppose a race is happening between two competitors A and B. Suppose a race is happening between two competitors A and B. This is our starting point and this is our finished or destination point. Finished or destination point. ठीक है. Suppose the total distance is of 500 meter, or we can say that the total race is of 500 meter. 500 meter. If this race is finished by A in, suppose A can finish this race in 40 seconds. How many seconds? 40 seconds. Now listen to me. A रेस को 40 सेकंड में फिनिश कर सकता है, तो व्हाट इट मीन ए कैन कवर द टोटल डिस्टेंस इन 40 सेकंड. एंड if B
और आई कैन से दैट कि बी ने बेटा 40 सेकंड कहां तक आया बेटा, यहां तक आया है। बी 40 सेकंड में कितना आया बेटा, अप टू दिस पॉइंट। और अब देखो कोई थोड़ा डिस्टेंस तो रह गया है ना, द रिमेनिंग डिस्टेंस। सपोज दिस रिमेनिंग डिस्टेंस सपोज दिस रिमेनिंग डिस्टेंस is covered by B in 10 more minutes in by suppose this particular distance is covered by B in 10 more second. So I can say that this 10 second is nothing but this 10 second is nothing but this is the beat time. This is the beat time. और आई कैन से दैट कि ए ने बी को हरा दिया है एक रेस में कितने सेकंड से बेटा, हाउ मेनी सेकंड, 10 सेकंड। हाउ मेनी सेकंड्स बेटा, 10 सेकंड। आर यू क्लियर विद दिस टर्म, आर यू क्लियर विद दिस टर्म बेटा? Only 2-3 students are responding. What about others? Very good, very good. Now I am going to explain how he will ask the questions, or what is the meaning of language of the questions. What is the meaning of the language of the question? मीन्स कैसे भी क्वेश्चन को आपसे पुट अप करेगा। अब देखो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बहुत ही स्लोली आपको बेटा बताऊंगा। प्लीज हैव पेशेंस एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सपोज करो बेटा कि पहले वो कहता है कि कोई रेस हो रही है और बंदा किसी डिस्टेंस से हार जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है। फिर मान लो कोई रेस हो रही है, बंदा किसी पर्टिकुलर टाइम से हार रहा है, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो वो सारी सेंस ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन विद इन बीट टाइम एंड बीट डिस्टेंस, बट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। सपोज क्वेश्चन में वो कहता है बेटा, सपोज क्वेश्चन में वो कह रहा है, suppose he is mentioning in the question, in he will say like this, he will say like this, in in 300-meter race, in 300-meter race, a defeats a defeats b by a defeats b by 50 मीटर। सपोज बेटा एक रेस हो रही है 300 मीटर की बेटा, और ए ने बी को हरा दिया है कितने मीटर से बेटा, 50 मीटर से। ए ने बी को कितने मीटर से हराया है बेटा, 50 मीटर से। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इट मीन। ऑल्दो अब आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया, बट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। सपोज बेटा एक रेस हो रही है 300 मीटर की, ठीक है बच्चों, दिस रेस इज ऑफ 300 मीटर डिस्टेंस, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज आवर फिनिश्ड और डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है बेटा, अब देखो बच्चों, ए भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और बी भी रेस में दौड़ रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए डिफीट्स बी बाय 50 मीटर। मींस मान लो कि 300 मीटर का रेस 30 सेकंड्स में कवर करें। कितने सेकंड में कवर करना है बेटा, 30 सेकंड में। मींस टाइम क्या है, टाइम बेटा सेम है, टाइम क्या है बेटा, सेम है। यानी कि दोनों कैंडिडेट या दोनों कॉम्पिटिटर्स कितने टाइम तक दौड़ेंगे बेटा, 30 सेकंड तक दौड़ेंगे। ठीक है बच्चों, 30 सेकंड तक। अब देखो हो क्या रहा है बेटा, 30 सेकंड में ए ने तो पूरा रेस कवर कर लिया है, तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, 300 मीटर। बट ए ने बी को हरा दिया 50 मीटर से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि बी पूरा 300 मीटर नहीं दौड़ा है, बी कितना मीटर पीछे रह गया है, बी कितना मीटर पीछे रह गया बेटा, 50 मीटर। कितना मीटर पीछे रह गया बेटा, 50 मीटर। तो ये 50 मीटर ही क्या होता है हमारा, बीट डिस्टेंस होता है। दिस 50 मीटर इज नथिंग बट दिस इज आवर बीट डिस्टेंस।
Are you clear with this language or are you clear with this statement? Say yes or no. Trishita, are you clear with this statement? Very good, beta. So, one more concept we will see. देखो बेटा, if time will remain same, if time will remain same, so don't you feel speed will be directly proportional to the distance? Means whatever may be the distance covered by the racers, whatever may be the distance covered by the racer, that particular distance will represent the speed of each competitor और each racer. ठीक है. So इसका मतलब क्या है? I am going to explain what it mean. देखो बेटा, सेम टाइम तक रेस हो रही है, 30 सेकंड तक एक रेस हुई है 300 मीटर. मींस ए ने रेस को 30 सेकंड में फिनिश कर दिया है और ए ने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, बट बी पीछे रह गए कितना मीटर? 50 मीटर. यानी कि ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया है? 50 मीटर से हरा दिया है. और ये 85 मीटर क्या होता है? हमारा बीट डिस्टेंस होता है. अभी जस्ट जस्ट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, आई हैव एक्सप्लेन टू यू. नाउ वन मोर थिंग. इफ टाइम इज कांस्टेंट, इफ टाइम इज कांस्टेंट, इफ टाइम इज कांस्टेंट, तो बेटा क्या होता है? जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ए और बी, ए और बी, देखो ए इज रनिंग होल स्पीड, ए इज रनिंग होल डिस्टेंस. मींस ए कितना डिस्टेंस चल रहा है? 300 मीटर. बट बी कितना डिस्टेंस चल रहा है बेटा? 250 मीटर ओनली. मींस ए से बी के जो डिस्टेंस का रेशियो है बेटा कितना है? 6:5. तो यही बेटा इनके क्या होगा? स्पीड का रेशियो होगा. व्हाट विल बी देयर स्पीड रेशियो? 6:5. बिकॉज स्पीड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द डिस्टेंस कवर. बोलो बेटा, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? ओके. नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, next. Suppose in 500-meter race, in 500-meter race, a defeats b by 20 seconds. In 500-meter race, a defeats b by 20 seconds. A defeats b by 20 seconds. देखो बेटा, यहाँ पे टाइम का जिक्र कर रहा है. प्रीवियस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट था, वहां पे डिस्टेंस से हराया था, बट यहाँ पे किससे हरा रहा है? टाइम से हरा रहा है. मींस डिस्टेंस क्या है? सेम कवर कर रहे हैं, सेम कवर करेंगे. ठीक है. तो बेटा देखो इसका मतलब क्या है? ये रेस हो रही है बेटा, रेस हो रही है. दिस रेस इज हैपनिंग बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी. ठीक है. दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज फिनिश पॉइंट. रेस हो रही है बेटा. सपोज करो रेस कितना मीटर है? 500 मीटर. ठीक है. अब बेटा ए और बी दोनों रेस में दौड़ रहे हैं. ए क्या कर रहा है? व्हाट ए इज डूइंग? ए सपोज करो पूरा रेस कितने टाइम में कवर कर ले रहा है बेटा? टी टाइम में. बट बी क्या कर रहा है बेटा? बी 20 सेकंड से हार जा रहा है. यानी कि बी टी टाइम में कितना दौड़ पा रहा है बेटा? बी टी टाइम में सिर्फ ये डिस्टेंस दौड़ पा रहा है. यानी कि बी इतना डिस्टेंस पीछे रह गया, बी ये डिस्टेंस पीछे रह गया. सपोज करो बी ये डिस्टेंस पीछे रह गया और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में बी को कितना टाइम लग रहा है बेटा? 20 सेकेंड. तो बेटा दिस 20 सेकेंड इज नथिंग बट दिस 20 सेकेंड इज the beat time. This 20 second is your beat time. So if distance is constant, if distance is constant, देखो रेस तो सेम डिस्टेंस का हो रहा है ना. डिस्टेंस क्या है बेटा? कांस्टेंट है. डिस्टेंस कांस्टेंट है बेटा. तो बच्चों क्या होगा? व्हाट विल हैपन देयर? Speed will be inversely proportional to what? Time. If distance is constant, then speed क्या होगा? Time के inversely proportional होगा. देखो बेटा A है और B है. A को पूरा रेस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? T. तो बेटा B कितना टाइम लेगा? T plus 20.
ठीक है। और जब टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है बेटा, तो यही क्या होगा, इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। मींस T+20 is to 10। क्लियर है वही, यानी कि ए का स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। आर यू क्लियर विद दिस टर्म ऑल्सो? आर यू क्लियर विद दिस टर्म ऑल्सो? ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक और टर्म मैं आपको बताता हूं बेटा, एक और टर्म, वन वन मोर टर्म, वन मोर टर्म, वन मोर टर्म, when when start or head start is given, when start or head start is given, start और head start is given। अब देखो बेटा, फिर से मैं बात करता हूं, ये जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट स्टार्ट, व्हेन हेड स्टार्ट और स्टार्ट इज गिवन। देखो बेटे, स्टार्ट हमें बंदा डिस्टेंस के टर्म में भी दे सकता है, ठीक है। स्टार्ट हमें बंदा टाइम के टर्म में भी दे सकता है, और स्टार्ट ही कैन गिव इन टर्म्स ऑफ बोथ डिस्टेंस एंड टाइम, और स्टार्ट ही कैन मेंशन in terms of both means distance as well as time, start, distance as well as time. So we will see the meaning of, we will see the meaning of start, we will see the meaning of start. Now listen to me very carefully, listen to me very carefully. Suppose in 2 kilometer race, in 2 kilometer race, A gives a start of, A gives a start of 400 meter to B. A give a start of 400 meter to B. एक रेस में ए ने बी को 400 मीटर का स्टार्ट दिया है, और वो रेस को टाइम, सेम टाइम पर फिनिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, या उनके स्पीड क्या है? देखो बेटा, लिसन टू मी। सपोज बच्चों, ये रेस हो रही है दो कैंडिडेट में, ये रेस है बेटा, ठीक है। अ रेस इज हैपनिंग बिटवीन टू कॉम्पिटिटर्स, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर फिनिश पॉइंट। What is the length of race? The length of race is 2 kilometer, means 2000 meter, 2000 meter. Okay. A gives a start of 400 meter to B. अब देखो A क्या कह रहा है B से, कि भाई A तो यही है कि तुम मुझसे, या मैं आपको 400 मीटर का स्टार्ट दे रहा हूं, कि आप भाई मुझसे 400 मीटर दूर जाकर खड़े हो जाओ, 400 मीटर दूर जाकर खड़े हो जाओ। अब दोनों रेस क्या है, दोनों रेस एक साथ दौड़ रहे हैं, और दोनों रेस क्या है, एक ही टाइम पे फिनिश कर ले रहे हैं। मीन्स दोनों रेस को क्या कर ले रहे हैं, टाइमली फिनिश कर रहे हैं। अगर रेस टाइमली फिनिश हो गया, तो बेटे ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए तो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा ना, बट बेटा वी विल कवर, वी विल कवर ओनली, वी विल कवर ओनली 1600 मीटर ऑफ डिस्टेंस। तो बेटा सेम टाइम सेम है, तो फिर से डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, ए और बी। ए तो बेटा पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, कितना, 2000 मीटर, और बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1600 ओनली। तो बेटे if I am going to take the ratio between A to B, so this will come out to be 5:4. If time is constant, so will also be this distance ratio will also be the ratio between their speed, the ratio between their speed. Okay beta, is this clear to everyone?
Is this clear to everyone? Clear now? So this is the meaning of start. One more thing, let me explain it to you. फिर से अगर वो कहता है बेटा कि वन किलोमीटर रेस इन 1 किलोमीटर रेस A gives a start of A gives a start of A gives a start of 30 second to B. A gives a start of 30 second to B. एक रेस हो रही है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिश पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट। ए यहां पर है, बी यहां पर है। ए ने कहा बी से कि आप 30 सेकंड तक दौड़ लो। अब मैं आपके बाद दौड़ना शुरू करूंगा। मैं आपके बाद क्या है, दौड़ना शुरू करूंगा। तो बेटा अगर ए को पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टी, तो बी को कितना टाइम लगेगा, t-30। बी को कितना टाइम लगेगा बेटा, t-30। अब देखो सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। ए टोटल रेस को टी टाइम में कवर कर रहा है। अब बी के पास स्टार्ट है 30 सेकंड का, तो बी को सपोज करो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, t-30 टाइम। तो सेम वही बेटा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन फ्रीज हो रही है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। Screen is visible from my side, students. सर पॉज हो चुका है। माय साइड नॉट विजिबल, पॉज हो चुका। Is this visible now? नो सर। Wait. कब से नहीं शो हो रही है, अभी से या टाइम हो गया? 30 सेकंड जो बोले थे उस समय। 30 सेकंड। Okay. Is it visible now? Yes sir. Is this visible now? Very good. Yes. So beta, what I am saying that in a 1 kilometer race, A gives a start of 30 second to B. In last statement, we have seen that start was given in terms of distance. Here start is given in terms of second. ठीक है, तो सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन हियर, when start is given in terms of time. If suppose he will say कि in a certain race A wins over B by a certain time, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का रेस हो रहा है और A कितने टाइम से जीत रहा है बेटा, 30 सेकंड से। मींस अगर A उस रेस को T टाइम में कवर कर रहा है तो B उस रेस को कितने टाइम में कवर करेगा बेटा, T+30 सेकंड में। आर यू क्लियर विद दिस टर्म्स? आर यू क्लियर विद these terms? Say yes or no बेटा। सर t+30 कैसे हो जाएगा? D प्लस सर t+30 नहीं बेटा, -30 होगा। वो ये कह रहा है ना कि 30 के लिए। सेकंड का स्टार्ट है, सेम टाइम में फिनिश कर रहे हैं। अगर उसे टी टाइम लग रहा है तो इसे t-30 लगेगा। तो फिर ये पूछेगा डिस्टेंस का रेशियो क्या है। आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, देन वट एवर मे बी योर डाउट, all the doubts and query will be clear after solving the questions, ठीक है। that's why I am telling you some basic terms at the start। देखो बेटा, होता तो मैं सीधे आपसे क्वेश्चन कराने लग जाता, तभी बेटा मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। पहले मेरा कॉन्सेप्ट बताने का मतलब यही है कि आपको पहले थोड़ा आइडिया लगे बेटा कि किस टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द सेंस ऑफ ईच स्टेटमेंट्स गिवन इन द
question. What is the sense of each statement that examiner is mentioning in the question? Are you clear? आगे चलें बेटा. Arjun, are you listening? Yes, sir. Okay. So beta, whatever maybe the discussion we did here, we assume only two competitors. What we have assumed here, we have assumed here only two competitors. If suppose you are having three competitors in a race, suppose you are having three competitors in a race. Let me explain it. Let me explain it. Let me explain it. The concept of three competitors. Concept of three competitors. Listen to me very carefully. Listen to me very carefully. In 1200-meter race, in 1200-meter race, A defeats A defeats B by A defeats B by 120 meter. A defeats B by 120 meter, and in the same race, in the same race, in the same race, B defeats B defeats C by B defeats C by B defeats C by suppose B defeats C by 300 meters, 300 meters, then then by how many meters, then by by how many meters, by how many meters will C defeats by A. ठीक है बेटा. एक 1200 मीटर का रेस हो रहा है जिसमें ए बी को 120 मीटर से हरा देता है, और सेम रेस में बेटा बी सी को कितने मीटर से हरा दे रहा है बेटा? 300 मीटर से. तो हमें ये बताना है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा या सी ए से कितने मीटर से हार जाएगा. ठीक है बेटा. Is statement is clear? What he want to ask, what he wants to ask, is this clear? Now listen to me very carefully. Listen to me very carefully. I will explain. I will explain this question with the help of two methods. With the help of two methods. First one is ratio method and second one is successive percentage method. Second one is successive percentage method. रेशियो मेथड भी दो टाइप से मैं आपको बताऊंगा बेटा. लिसन टू मी. देखो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे. बेटा ये रेस है और रेस जो है ना वो 1200 मीटर का रेस है. कितना मीटर? 1200 मीटर. ठीक है बेटा. दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज योर फिनिशिंग पॉइंट. ठीक है बेटा. इन अ 1200 मीटर रेस ए डिफीट्स बी बाय 120 मीटर. ए डिफीट्स बी बाय 120 मीटर. देखो बेटा, ए डिफीट्स बी बाय 120 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ बेटा कि अगर ए 1200 मीटर चलेगा ना तो बी कितना चलेगा? 1080 मीटर ही चलेगा. If A will cover 1200 meter distance, then B will cover only 1080 meter. Are you clear with this term? बोलो बेटा, are you clear? If I will see
if I will see this ratio will come out to be 12 is to 9. Sorry, 10 is to 9. This ratio will come out to be 10 is to 9. 10 is to 9. Are you clear with the ratio between A and B? 10 is to 9. And this is the ratio of the corresponding distance covered by A and B. Now, what is second statement? Second statement is, and in the same race B defeats C by 300 meter. In the same race B defeats C by 300 meters. मीन्स अगर B और C में रेस हो रही होगी बेटा, अगर B बच्चों 1200 मीटर दौड़ता है तो C कितना मीटर दौड़ेगा बेटा? 900 meters only. बिकॉज C कितने मीटर से हार रहा है B से? 300 मीटर से हार रहा है. ठीक है, देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर बी तो 1080 दौड़ा है, तो बेटा मैं सी को उसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा ना ले रहा हूं, मैं तो सी को बेटा सेम रेस की बात हो रही ना, मैं फिर से ये जूम करके चल रहा हूं कि अब बी और सी में रेस हो रही है कितने मीटर की? 1200 मीटर की. मींस डिस्टेंस में सेम ही रख के चल रहा हूं दोनों केस में. तो बेटा अगर बी 1200 मीटर चला होगा तो सी कितने मीटर चलेगा बेटा? C will cover only 900 meters because C कितने मीटर से हार रहा है? 30 मीटर से हार. अब देखो बेटा फिर से अगर मैं यहां से रेशियो लूंगा ना तो दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 4:3. दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 4:3. मीन्स ये जो रेशियो हुआ ये किसका हुआ बेटा? डिस्टेंस कवर्ड बाय B and C. This is the ratio between the distance covered by B and C. Are you clear up to this point? Or any doubt? Are you clear up to this point? Very good. Now, beta, listen to me. Listen to me. What was the ratio between A and B? The ratio between A and B was 10 is to 9. 10 is to 9. And the ratio between B and C is 4:3. 4:3. What is our main target? To establish a relationship between A and C. Means what we have to do, we have to make the common things equal. What we have to do, we have to make the common things equal. Means ये जो B का वैल्यू है मुझे क्या करना है बेटा? सेम करना है. B का वैल्यू मेरे को क्या करना है बेटा? सेम करना है. So what I will do, I am going to multiply this by 4 and this ratio by 9. Any problem to anyone? If I will multiply by 4, so this will become 40 is to 36 is to 27. What means अगर A 40 यूनिट दौड़ेगा तो B 36 यूनिट दौड़ेगा बेटा, और C कितना यूनिट दौड़ेगा बेटे? 27 यूनिट. मींस जो मैंने मीडिएटर वैल्यू था, जो मिड टर्म था B, वो मैंने क्या किया बेटा? कॉमन बना लिया. देखो एक तरीका तो ये है रेशियो को कॉमन बनाने का, ये एक और मेथड है. तब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा और ऑल्दो वहां पे क्लियर कर. ABC ये क्या है? 10 9. ये क्या है? 4 3. तो पता है हम क्या करते हैं, अगर तीनों में रिलेशन बनाना है ना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा. ठीक है, तो ऐसे भी हम रेशियो निकाल लेते हैं. तो बेटा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ABC 40 36 27. मीन्स अगर A 40 यूनिट्स दौड़ेगा तो B कितना यूनिट दौड़ेगा? 36 यूनिट. और C कितना यूनिट दौड़ेगा बेटा? 27 यूनिट. इन दिस क्वेश्चन कि A C को कितना मीटर से हराएगा? A कितना यूनिट दौड़ रहा है बेटा? 40 यूनिट. और C कितना यूनिट दौड़ रहा है बेटा? 27 यूनिट. A 40 यूनिट दौड़ रहा है, C 27 यूनिट दौड़ रहा है. तो आपको नहीं लग रहा कि A C से 13 यूनिट ज्यादा दौड़ रहा है, या C is running 13 यूनिट लेस देन A? ठीक है बेटा. अब A 40 यूनिट दौड़ रहा है,
और ए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए यानी कि रेस की वैल्यू बेटा कितना है, 1200 मीटर है। कितना मीटर बेटा, 1200 मीटर। तो बेटे 1200 मीटर का मतलब है कि एक यूनिट का वैल्यू 30 हुआ। अब बी कितने यूनिट से हार रहा है बेटा, 13 यूनिट से, मीन्स 13 इंटू 30 और दिस विल कम आउट टू बी 390 meters, मीन्स ए सी को कितने मीटर से हरा देगा बेटा, ए सी को कितने मीटर से हरा देगा बेटा, 390 मीटर से। कितना मीटर बेटा, 390 मीटर। हाउ मेनी मीटर्स बेटा, 390 मीटर्स। बोलो, आर यू क्लियर, आर यू क्लियर और एनी डाउट, आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? सो बेटा ए सी से 30 ज्यादा चला है। नहीं बेटे, देखो अब हमने रेशियो देखा था ना, ये रेशियो हमने देख लिया था। तो इस रेशियो से बेटा हमें एक चीज क्लियर हो गई थी कि अगर ए टोटल 40 यूनिट्स दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा, 36 यूनिट, और सी कितना दौड़ेगा, 27 यूनिट। देखो सबको कहीं ना कहीं ए ही हरा रहा है, यानी कि ए पूरा रेस दौड़ रहा है। ए क्या है, ए एक ऐसा बंदा है जो पूरा रेस दौड़ रहा है, और पूरा रेस हमारा कितने मीटर का है बेटा, 1200 मीटर का है। मीन्स 40 यूनिट का वैल्यू कितना है बेटे, 40 यूनिट का वैल्यू है बेटे 1200 मीटर्स। मीन्स एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ बेटा, 30 मीटर हुआ। एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 30 मीटर। अब देखो बेटे, ए तो 40 मीटर दौड़ रहा है और सी कितने मीटर दौड़ा है, 27। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए 13 यूनिट ज्यादा दौड़ा है, यानी कि ए 13 यूनिट से जीता है। एक यूनिट का वैल्यू बेटे कितना है, 30। तो 13 यूनिट का वैल्यू बेटे कितना आएगा, 390 आएगा। द वैल्यू ऑफ 13 यूनिट विल कम आउट टू बी 390 मीटर। से यस और नो, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? Still any doubt? No, no doubt. Now I am going to solve this question with a next method. And what is next method? Net successive, net successive percentage, net successive percentage method, successive percentage method। अब देखो successive percentage method हमारा क्या कहता है, x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। अरे बेटा सक्सेसिव परसेंटेज हमारा नेट परसेंटेज तो रिलेशन बनाता था ना, कि अगर दो क्वांटिटी है, तीन क्वांटिटी, एक उससे x% ज्यादा है, दूसरा और तीसरा क्वांटिटी, जैसे ये कहता है ना, एक दो तीन, तीन टर्म है, ये इससे x% ज्यादा है, ये इससे y% ज्यादा है, तो टोटल कितना ज्यादा है, तो वही तो सक्सेसिव होता है ना। बोलो बेटा, व्हाई व्हेन आई वाज टीचिंग परसेंटेज आई हैव एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल मीनिंग ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर परसेंटेज हमें ये बताएगी कि सपोज करो तीन बंदों में रेस हो रही है, ए बी और सी। ए बी को यहाँ पे एक्स परसेंटेज का मतलब है कि टोटल रेस में ए बी को कितने परसेंटेज से हरा रहा है। वाई परसेंटेज का मतलब है कि टोटल रेस में बी सी को कितने परसेंटेज से हरा रहा है। और बेटा जो एक्स वाई का सक्सेसिव होगा ना, वही आपको बताएगा कि ए सी को कितने परसेंटेज से हरा रहा है। आर यू क्लियर, आर यू क्लियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, क्लियर हो ना? अर्पणा, आर यू क्लियर बेटे? Yes, sir. Now, अब listen to me very carefully. बेटा रेस, my race is of how many meters? 1200 meters. 1200 मीटर के रेस में बेटा पहले ए ने बी को हराया है बेटे कितने मीटर से, 300 मीटर से। ए डिफीट्स बी, ए डिफीट्स बी बाय 120 120, सॉरी, 120। ए डिफीट्स बी बाय 120 meters. A defeats B by 120 मीटर, 120 मीटर। अब देखो बेटा A ने B को 120 मीटर से हराया है, तो यहां पर मैं देखूंगा X परसेंटेज कितना आ रहा है। X परसेंटेज मीन्स कितने यूनिट से हराया है और टोटल कितना था बेटा, 1200। तो आपको नहीं लगता कि ये कितने परसेंटेज से हराया है बेटा,
10% से हरा है। बाय हाउ मच परसेंटेज? 10%। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कितने परसेंटेज से हरा है बेटा? 10% से। अब इधर चलते हैं, अब फिर से बी और सी में रेस हुई है। बी ने सेम रेस में सी को कितने से हराया है बेटा? 300 से हराया है। कितना बेटा? 300 से। बेटे टोटल रेस मेरा था कितना? 1200 मीटर का। कितने मीटर से हार गया? 300 मीटर से। मीन्स 1/4 से हार गया है। 1/4, 1/4 फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज कितना होगा बेटा? 25%। मीन्स कितने परसेंटेज से हार गया है? 25% से हार गया। या मैं ये कह सकता हूं कि इतना परसेंटेज कम दौड़ा है। कम दौड़ा है तो हम बेटे निगेटिव वर्ड यूज करेंगे। कम दौड़ा है तो निगेटिव वर्ड यूज करेंगे। अब बेटा अगर मैं नेट परसेंटेज कैलकुलेट करने जाऊंगा, इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट नेट परसेंटेज, तो बेटा -10%, -25%, माइनस, देखो बीच में ना प्लस साइन यूज करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, 10 इंटू 25/100%। ठीक है बेटा, तो दिस विल कम आउट टू बी -32.5%। -32.5%। व्हाट दिस 32.5% मीन्स कि ए ने सी को हराया है कितने परसेंटेज से बेटा? 32.5% से। या आई विल से दैट सी रन only only 67.5% distance and A runs 100% distance. A ने 100% डिस्टेंस दौड़ा है, तो C ने कितना डिस्टेंस दौड़ा होगा बेटा? 67.5%। ओके, तो 32.5% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि कितने डिस्टेंस से हराया है। 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 1200, मल्टीप्लाइड बाय 1200। देखो बेटा 32.5 मीन्स 30% प्लस 2.5%। So after solving it, you will get 390 meter. You will get 390 meter as the answer. You will get 390 meter as the answer. Means ए ने सी को कितने स्पीड से हराया है बेटा, या कितने मीटर से हराया है बच्चों? 390 मीटर। आर यू क्लियर विद दिस? आर यू क्लियर विद दिस बेटा? एनी डाउट टू एनीवन? 32.5% into 1200. Okay. हाँ, 1200 मतलब टोटल रेस की बात होगी ना, कितने टोटल रेस के इतने परसेंटेज से हराया है। टोटल रेस तो बेटा 1200 मीटर का था ना। हाँ. Okay. हाँ, 32% ऑफ टोटल रेस, 32.5% ऑफ 32.5% ऑफ टोटल रेस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Now